So students, a very good morning to you all. In the previous class, Good morning. we discussed about normal residence. Now let me remind you once again the meaning of normal resident. What does normal resident mean? Normal resident refers to a person or an institution who normally resides. Normal resident refers to a person or an institution who normally resides in the country and whose center of economic interest also lies in that country. The term center of economic interest implies two things. The first one is that the resident should normally reside in the country, and second, the resident should carry out all economic activities such as the activities of earning, spending, and accumulation in the country. Once again, normal resident refers to an individual or an institution who normally resides in the country and whose center of economic interest also lies in that country. The term center of economic interest implies two things. The first one is the resident normally lives in the country, and second, the resident carries out all economic activities such as earning, spending, and accumulation of money in the country. Generally, all the people living in the country are considered as residents of the country. But there are some exceptions to it. The first one is generally all the people who are living in the country are considered as residents of the country with some exception. The first exception is foreign tourists and visitors who visit our country for study purpose, for sports event, for attending conferences, for medical treatment, for spending holidays, for recreation purpose. They are not considered as resident of our country. Second, foreign embassies, officials, diplomats, members of armed forces of foreign countries, if they visit our country and they are living in our country, then living in our country, they won't be considered as resident of our country. If any international organization is situated in India, it will not be considered as resident of India. And fourth point, if a foreigner is working in international organization which is situated in India, then if his working period is less than a year, he will not be considered as resident of India, he will be considered as resident of the country to which he belongs. But if the same foreigner who is working in international organization situated in India, and if his working period in that international organization exceeds 1 year time frame, then that foreigner will be considered as resident of India. Fifth point, crew members of foreign vessels, commercial travelers, seasonal workers, they are not considered as resident of India if their stay in India is less than a year. And sixth point, border workers who frequently cross the
borderline of country are considered as resident of the country to which they belong and not the resident of the country in which they work. These are some exceptions of normal resident. These are some exceptions of normal resident. आप सभी को कल के क्लास में नॉर्मल रेसिडेंट की मीनिंग बताई गई थी और इसके एक्सेप्शंस बताए गए थे। एक बार फिर मैं दोहरा दूं, नॉर्मल रेसिडेंट होता क्या है और इसके एक्सेप्शंस क्या हैं। नॉर्मल रेसिडेंट सामान्य निवासी का क्या अर्थ है? तो एक देश का निवासी वह व्यक्ति माना जाता है जो आमतौर पर उस देश में रहता है और तमाम तरह की अपनी आर्थिक गतिविधियां उसी देश में किया करता है। एक देश का निवासी वह व्यक्ति माना जाता है जो आमतौर पे उस देश में रहता है और सभी तरह की अपनी आर्थिक गतिविधियां उसी देश में किया करता है। आर्थिक गतिविधियों से मेरा मतलब है कि वो व्यक्ति विशेष उसी देश में कमाए, खर्च करे और पैसा एकत्रित भी करे। उदाहरण के लिए मैं अगर अपना उदाहरण लूं तो मैं भारत में रहता हूं प्लस मैं भारत में ही कमाता हूं, खर्च करता हूं और पैसा एकत्रित भी करता हूं, तो इस लिहाज से मैं भारत का निवासी माना जाऊंगा। आमतौर पर देश में जितने भी लोग रहते हैं वो सभी के सभी लोग भारत के निवासी हैं, कुछ को छोड़कर। सवाल उठता है किन्हें छोड़कर? आमतौर पर देश में जितने भी लोग रहते हैं वो सभी के सभी लोग देश के निवासी होते हैं, कुछ को छोड़कर। इन्हें छोड़कर तो इसमें पहला, अगर कोई विदेशी भारत आया है घूमने फिरने के लिए, छुट्टियां बिताने के लिए, मौज मस्ती के लिए, अध्ययन के लिए, खेल कूद के लिए, इलाज के लिए या किसी सम्मेलन में सम्मिलित होने के लिए, तो वो भारत में रहते हुए भी भारत का निवासी नहीं माना जाता। अगर जॉन नाम का एक अमेरिकी भारत आया है ताजमहल देखने के लिए, वो यहां पर रहते हुए भी यहां का निवासी नहीं माना जाएगा। अगर जापान से कोई जापानीज आया है बनारस और बीएचयू में संस्कृत सीखने के लिए, संस्कृत का अध्ययन करने के लिए, भारतीय सभ्यता संस्कृति का अध्ययन करने के लिए, तो वो यहाँ पर हालांकि रह रहा है, अध्ययन कर रहा है, लेकिन यहाँ रहते हुए भी वो भारत का निवासी नहीं माना जाएगा। पहले एक्सेप्शन में मैंने यही कहा कि अगर कोई विदेशी भारत आए घूमने फिरने के लिए, छुट्टियां बिताने के लिए, मौज मस्ती के लिए, अध्ययन के लिए, इलाज के लिए, किसी खेल कूद में हिस्सा लेने के लिए, तो वो भारत में रहते हुए भी भारत का निवासी नहीं माना जाएगा। दूसरी बात, अगर कोई फॉरेन एम्बेसडर, विदेशी राजदूत, दूसरे देशों के उच्च अधिकारी, दूसरे देशों के कूटनीतिज्ञ, दूसरे देशों के सेना प्रमुख अगर हमारे देश आए हैं और हमारे देश में वो समय बिता रहे हैं, रह रहे हैं, तो भारत में रहते हुए भी भारत के निवासी नहीं माने जाएंगे। Foreign ambassador, officials, diplomats and members of armed forces living in India won't be considered as resident of India. अगर कोई विदेशी राजदूत,
दूसरे देशों से उच्च अधिकारी, दूसरे देशों के सेना प्रमुख यहाँ भारत आए, भारत में रह रहे हैं, तो भारत में रहते हुए भी वो भारत के निवासी नहीं माने जाएंगे। थर्ड एक्सेप्शन, अगर कोई अंतरराष्ट्रीय संस्था भारत में स्थित है तो वो अंतरराष्ट्रीय संस्था भारत में होते हुए भी भारत के निवासी नहीं मानी जाएगी। फोर्थ एक्सेप्शन, अगर एक अंतरराष्ट्रीय संस्था भारत में स्थित है और उस अंतरराष्ट्रीय संस्था में एक विदेशी काम कर रहा है और काम करने की उसकी समय अवधि 1 साल से कम की है, तो वो भारत में हालांकि काम कर रहा है, काम करते हुए यहाँ रहते हुए भी यहाँ का वो निवासी नहीं माना जाएगा। लेकिन अगर एक अंतरराष्ट्रीय संस्था भारत में स्थित है और उस अंतरराष्ट्रीय संस्था में एक विदेशी साल भर से अधिक समय से काम कर रहा है, 1 साल से अधिक समय से काम कर रहा है, तो वो भारत में रहते हुए भारत का निवासी माना जाएगा। फिफ्थ एक्सेप्शन, अगर कोई विदेशी नाविक, विदेशी कारोबारी या फिर विशेष मौसम में आ रहे श्रमिक यहाँ भारत आए और वो साल भर से कम समय के लिए भारत में रहे, वो भारत में रहते हुए भारत के निवासी नहीं माने जाएंगे। एंड लास्ट एक्सेप्शन है इसका, सीमावर्ती इलाकों में अक्सर देखा जाता है कि लोगों का आना जाना लगा रहता है, जैसे कि नेपाल और इंडिया का जो बॉर्डर है, उस बॉर्डर एरिया के लोग अक्सर दूसरे देश जाया आया किया करते हैं। उदाहरण के लिए नेपाल और इंडिया का जो बॉर्डर है, उस बॉर्डर में देखा जाता है, उस बॉर्डर पर ये देखा जाता है, उस बॉर्डर इलाके पर ये देखा जाता है कि नेपाल से अक्सर लोग भारत आते हैं काम करने के लिए और भारत से अक्सर लोग जाते हैं नेपाल काम करने के लिए। लेकिन हालांकि नेपाली लोग भारत आ रहे हैं काम करने के लिए, वो यहाँ पर काम करते हैं, लेकिन यहाँ पर काम करते हुए भी वो यहाँ भारत के निवासी नहीं माने जाएंगे, वो निवासी उस देश के माने जाएंगे जहाँ वो मूलतः रहने वाले हैं। वो नेपाली रहने वाला कहाँ का है, तो नेपाल का रहने वाला है, तो वो नेपाल का निवासी माना जाएगा। लास्ट पॉइंट में मैंने यही कहा कि सीमावर्ती इलाकों में अक्सर देखा जाता है कि लोग रहते एक देश में काम दूसरे देश में करते हैं। जैसे कि एक नेपाली व्यक्ति जो कि नेपाल का रहने वाला है, वो अक्सर भारत आता है काम के सिलसिले में, यहाँ काम करता है, तो क्या वो नेपाली व्यक्ति भारत का निवासी माना जाएगा? नहीं, वो भारत का निवासी नहीं माना जाएगा। हालांकि वो यहाँ काम कर रहा है, फिर भी वो हमारे देश का निवासी नहीं माना जाएगा, वो मूल का निवासी माना जाएगा नेपाल का, जहाँ का वो रहने वाला है। तो ये सब कुछ आपको पिछले क्लास में बताया गया था और ये टर्म बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अभी तक आपको जो 2 टर्म एक्सप्लेन किए गए हैं, डोमेस्टिक टेरिटरी और नॉर्मल रेसिडेंट, ये दोनों ही टर्म बहुत ही इंपॉर्टेंट है। किस लिहाज से इनका इंपॉर्टेंस है? तो डोमेस्टिक टेरिटरी के आधार पर, आप सभी अपना स्पीकर म्यूट कर रहे हैं। डोमेस्टिक टेरिटरी के आधार पर हम तय करते हैं कि एक इनकम को डोमेस्टिक इनकम में इंक्लूड किया जाएगा या नहीं। वही नॉर्मल रेसिडेंट टर्म के आधार पर हम तय करते हैं कि उस इनकम को नेशनल इनकम में इंक्लूड किया जाएगा या नहीं। जरा ध्यान से सुन लें। नेशनल इनकम और डोमेस्टिक इनकम में कौन सी इनकम इंक्लूड की जाएगी, ये हम किस आधार पर तय करते हैं? तो डोमेस्टिक इनकम में ये देखा जाता है कि इनकम कहाँ अर्न किया गया, कहाँ कमाया गया। अगर इनकम डोमेस्टिक टेरिटरी के भीतर कमाया गया है तो उस इनकम को हम डोमेस्टिक इनकम में इंक्लूड करेंगे।
यहाँ पर किस आधार पर तय किया जा रहा है, तो डोमेस्टिक टेरिटरी के आधार पर तय कर रहे हैं कि इनकम को डोमेस्टिक इनकम में इंक्लूड किया जाए। वही नेशनल इनकम में ये नहीं देखा जाता है कि इनकम कहाँ कमाए, बल्कि नेशनल इनकम में ये देखा जाता है कि इनकम कौन कमाया है। अगर इनकम कमाने वाला व्यक्ति नॉर्मल रेसिडेंट है तो ही उसके इनकम को हम नेशनल इनकम में इंक्लूड करेंगे। फिर से मैं दोहरा दे रहा हूं, डोमेस्टिक इनकम में हम ये देखते हैं कि इनकम कहाँ अर्न की गई है, कहाँ कमाई गई है। अगर इनकम डोमेस्टिक टेरिटरी के भीतर कमाई गई है तो उस इनकम को हम डोमेस्टिक इनकम में इंक्लूड करेंगे। वही नेशनल इनकम में ये नहीं देखा जाता है कि इनकम कहाँ कमाया गया, बल्कि नेशनल इनकम में हम ये देखते हैं कि इनकम कौन कमाया है। अगर इनकम कमाने वाला व्यक्ति, इनकम अर्न करने वाला व्यक्ति हमारे देश का निवासी है तो ही उसके इनकम को हम नेशनल इनकम में इंक्लूड करेंगे। कुछ स्टेटमेंट्स हैं जिसके आधार पर इससे रिलेटेड आपसे क्वेश्चन जो है, अभी जो आपको टॉपिक एक्सप्लेन किया गया उससे रिलेटेड क्वेश्चन दो तरीके से पूछे जा सकते हैं। पहला तो स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द टर्म नॉर्मल रेसिडेंट, ठीक। और दूसरा जो है, आपको कुछ स्टेटमेंट दे दिए जाएंगे और आपको आइडेंटिफाई करना होगा कि क्या ये व्यक्ति विशेष हमारे देश का या ये संस्था विशेष हमारे देश का नॉर्मल रेसिडेंट है या नहीं। आपको मैं बता दूं कि इकोनॉमिक्स में स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन बहुत ही कम होते हैं। ऐसे क्वेश्चन ज्यादा पूछे जाते हैं जहां पर आपको लॉजिक अप्लाई करना, थिंकिंग अप्लाई करनी है। तो दूसरा जो क्वेश्चन का टाइप में बताया, उस तरह के क्वेश्चन ज्यादा आने की संभावना होती है। तो कुछ स्टेटमेंट मैं खुद रख रहा हूं और मैं कैसे आइडेंटिफाई करूंगा कि ये व्यक्ति विशेष या ये संस्था विशेष नॉर्मल रेसिडेंट है, हमारे देश का निवासी है या नहीं, वो आप जरा फॉलो करें। Indian officials working in the Indian embassy in Russia. Indian officials working in the Indian embassy in Russia. रशिया में इंडियन एम्बेसी है, मान लो एक रफ स्केच हो गया रशिया में ये एक इंडियन एम्बेसी है और इस इंडियन एम्बेसी में इंडिया का एक उच्च अधिकारी काम कर रहा है। रशिया में है इंडियन एम्बेसी और उस इंडियन एम्बेसी में एक भारत का उच्च अधिकारी जो है वो काम कर रहा है। तो क्या उस व्यक्ति विशेष को हम अपने देश का निवासी मानेंगे? जवाब होगा हाँ, वो हमारे देश का निवासी माना जाएगा, वो हमारे देश का निवासी माना जाएगा। ठीक उसी तरह जिस तरह हमारे देश में अगर कोई फॉरेन एम्बेसडर, हाई ऑफिशियल, डिप्लोमेट्स, मेंबर ऑफ आर्म्ड फोर्सेस अगर हमारे देश में आए हैं, रह रहे हैं, काम कर रहे हैं, तो वो हमारे देश के निवासी नहीं माने जाते। ठीक उसी तरह ये इंडियन एम्बेसडर जो कि रशिया में काम कर रहा है वो रशिया का निवासी नहीं माना जाएगा, वो निवासी उस देश का माना जाएगा जहां का वो मूलतः रहने वाला है। ये कहाँ का रहने वाला है? तो इंडिया का रहने वाला है, तो ये इंडिया का निवासी माना जाएगा। एक बार फिर, द स्टेटमेंट वाज an Indian official is working in Indian embassy situated in Russia. रशिया में स्थित है इंडियन एम्बेसी और उस इंडियन एम्बेसी में एक इंडियन एम्बेसडर काम कर रहा है। सवाल ये है, क्या वो इंडियन एम्बेसडर रशिया का निवासी माना जाएगा या फिर भारत? तो वो भारत का निवासी माना जाएगा। ऐसा मैं इस आधार पर कहा।
तो अभी आपको मैं नॉर्मल रेसिडेंट की मीनिंग बताया, जिसमें मैं कुछ एक्सेप्शन बताया, अपवाद बताया कि अगर भारत में कोई विदेशी राजदूत आया है, कुछ अधिकारी आया है दूसरे देश का, दूसरे देश के सेना प्रमुख यहाँ भारत में आए हैं, तो वो भारत में रहते हुए भी भारत के निवासी नहीं माने जाएंगे, वो उस देश के निवासी माने जाएंगे जहाँ के वो है। ठीक उसी तरह हमारे देश का एम्बेसडर है और ये रशिया में काम कर रहा है, तो ये रशिया में काम करते हुए भी रशिया का निवासी नहीं माना जाएगा, बल्कि ये निवासी माना जाएगा भारत। A Japanese tourist who stays in India for 2 months. एक जापानीज टूरिस्ट है और वो भारत आया हुआ है यहाँ घूमने के लिए, और वो पिछले 2 महीनों से यहाँ भारत में रह रहा है। क्या भारत में रहते हुए वो भारत का निवासी माना जाएगा? नहीं, वो भारत का निवासी नहीं माना जाएगा, क्योंकि एक्सेप्शन नंबर 1 यहाँ पर अप्लाई होता है। अगर कोई विदेशी हमारे देश आते हैं घूमने फिरने के लिए, छुट्टियां बिताने के लिए, अध्ययन के लिए, इलाज के लिए, खेल कूद में हिस्सा लेने के लिए या किसी सम्मेलन में सम्मिलित होने के लिए, तो वो भारत में रहते हुए भी भारत के निवासी नहीं माने जाएंगे, क्योंकि वो जापानीज भारत आया है घूमने के लिए, पर्यटन के लिहाज से, और वो यहाँ 2 महीनों से है, वो यहाँ रहते हुए भी भारत का निवासी नहीं माना जाए। इंडियन मुस्लिम्स गोइंग फॉर द हज पिलग्रिमेज, भारतीय मुसलमान हज यात्रा के लिए विदेश गए हैं, तो क्या हमारे देश के निवासी माने जाएंगे? हाँ, बिल्कुल माने जाएंगे। अगर हमारे देश का कोई व्यक्ति दूसरे देश गया है घूमने फिरने के लिए, खेल कूद के लिए, तो उस दूसरे देश में रहते हुए भी वो हमारे देश का ही निवासी माना जाएगा। होप यू अंडरस्टैंड। अगर कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हो, इस टर्म से रिलेटेड अगर कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हो। Any doubt? No doubt. No doubt, sir. जिस किसी को भी डाउट है वो पूछ ले। क्वेश्चन है, हाँ, आदमी अगर फॉरेन कंपनीज के थ्रू फॉरेन कंट्रीज में जाता है 3 साल 4 साल के लिए, तो वो उसका उस कंट्रीज का रेसिडेंट माना जाएगा ना? एक व्यक्ति दूसरे देश गया है और वहां काम करने के लिए, तो वो उस देश का निवासी माना जाएगा? ये क्वेश्चन पूछ रहे हैं। नहीं, वो व्यक्ति जो है वो हमारे देश का निवासी माना जाएगा। हाँ, वो व्यक्ति विशेष हमारे देश का 3 साल निवासी 4 साल के लिए गया है, तो 3-4 साल 4 साल के लिए गया है तो वीजा पर गया होगा। यहाँ पर वो मूलतः रहने वाला कहाँ का है? वो काम के सिलसिले में गया है, मूलतः भारत का रहने वाला है, तो भारत का निवासी माना जाएगा। एक चीज और है इसमें, एक इनकम का कहाँ ऐड होगा? अगर वो भारत का निवासी है, अगर वो भारत का निवासी है तो डेफिनेटली उसकी इनकम जो है इंडिया के नेशनल इनकम में जुड़ी जाएगी। हाँ, एक चीज यहाँ गौरतलब है, इनकम वो कहाँ अर्न कर रहा है? तो अर्न कर रहा है वो दूसरे देश में, इंडिया के डोमेस्टिक टेरिटरी में उसकी अर्निंग नहीं हो रही है, तो उसकी इनकम जो है वो ऐड की जाएगी इंडिया के डोमेस्टिक इनकम में नहीं, बल्कि उस देश के डोमेस्टिक इनकम में जिस देश में वो काम कर रहा है। 2 बात, क्योंकि वो भारत का निवासी है इसलिए उसकी इनकम जो है हम ऐड करेंगे इंडिया के नेशनल इनकम में, लेकिन वो कमाया भारत के डोमेस्टिक टेरिटरी में नहीं है, वो दूसरे देश की डोमेस्टिक टेरिटरी में कमा रहा है, तो इसलिए उसकी इनकम को हम भारत के डोमेस्टिक इनकम में ऐड नहीं करेंगे, बल्कि उसकी इनकम को जोड़ी जाएगी उस देश की डोमेस्टिक इनकम में जहां पर वो कमा रहा है। आगे इससे रिलेटेड और एक टर्म है
सिटीजन, सिटीजनशिप एंड रेसिडेंटशिप, कुछ उसके बारे में आप जान लीजिए। सिटीजन और रेसिडेंट में क्या अंतर होता है। सिटीजन एक देश का सिटीजन वह व्यक्ति माना जाता है जिसका जन्म उस देश में हुआ हो। आमतौर पर एक सिटीजन का हिंदी होता है नागरिक, वही रेसिडेंट का हिंदी होता है निवासी। एक देश का सिटीजन नागरिक वह व्यक्ति माना जाता है जिसका जन्म उस देश में हुआ हो। इसके अलावा नागरिकता आप कुछ कानूनी प्रावधानों को पूरा करते हुए, सब लीगल प्रोविजंस को फुलफिल करते हुए भी आप सिटीजनशिप, नागरिकता जो है हासिल कर सकते। वही रेसिडेंट का मीनिंग ऑलरेडी मैं बता चुका हूं। रेसिडेंट का मतलब होता है वो जो आमतौर पर हमारे देश में रहे और तमाम तरह की अपनी आर्थिक गतिविधियां उसी देश में किया करे। दो बात, सिटीजन हिंदी है नागरिक, सिटीजन आमतौर पर वह व्यक्ति होता है जिसका जन्म उस देश में हुआ हो या फिर कुछ कानूनी प्रावधानों को पूरा करते हुए भी आप सिटीजनशिप जो है वो प्राप्त कर सकते हैं। एक व्यक्ति जिसका जन्म भारत में हुआ है वो भारत का नागरिक, सिटीजन माना जाता है। सिटीजनशिप हासिल करने के दो रास्ते हैं, एक जन्म के आधार पर और दूसरा कुछ कानूनी प्रावधानों को पूरा करते हुए भी आप सिटीजनशिप प्राप्त कर सकते हैं। वहीं अगर बात कही जाए रेसिडेंट की या रेसिडेंटशिप की, अगर हम बात करें रेसिडेंट या रेसिडेंटशिप की, तो एक देश का रेसिडेंट वह व्यक्ति माना जाता है जो आमतौर पर उस देश में रहता है और तमाम तरह की अपनी आर्थिक गतिविधियां उसी देश में किया करता है। काइंडली आप सभी अपना स्पीकर ऑफ कर लें। हाँ, ये जरूरी नहीं है कि एक सिटीजन हमेशा देश का रेसिडेंट हो और ये भी आवश्यक नहीं है कि एक रेसिडेंट हमेशा सिटीजन हो। मैं इसके कुछ एग्जांपल दे रहा हूं। मैंने ये कहा इट इज नॉट कंपल्सरी दैट अ सिटीजन विल बी रेसिडेंट एंड रेसिडेंट विल बी सिटीजन। ये आवश्यक नहीं है कि एक सिटीजन हमेशा रेसिडेंट होगा और ये भी आवश्यक नहीं है कि एक रेसिडेंट हमेशा सिटीजन हो। एक उदाहरण में दे रहा हूं, राम का जन्म भारत में हुआ तो जन्म के आधार पर राम भारत का क्या माना जाएगा? नागरिक, सिटीजन माना जाएगा। राम का जन्म भारत में हुआ तो जन्म के आधार पर राम जो है भारत का नागरिक माना जाएगा, सिटीजन माना जाएगा। राम बड़ा हुआ और वो विदेश चला गया, वही कमा रहा है। अब वो विदेश, मान लीजिए अमेरिका, वो चला गया और अमेरिका में ही कमा रहा है, वही रह रहा है। अब भारत से उसका कोई नाता नहीं है, वो वहीं रह रहा है वहीं, और तमाम तरह की अपनी आर्थिक गतिविधियां वहीं अमेरिका में कर रहा है, वहीं कमा रहा है, खर्च कर रहा है और पैसा एकत्रित भी कर रहा है। तो राम अब रेसिडेंट कहाँ का माना जाएगा? तो अमेरिका का रेसिडेंट माना जाएगा। इस एग्जाम्पल से एक बात साबित होती है, वो ये कि ये जरूरी नहीं है कि हमेशा एक सिटीजन रेसिडेंट हो। जैसा कि राम की केस में आपने जाना, राम सिटीजन कहाँ का रहा? तो इंडिया का रहा, लेकिन रेसिडेंट कहाँ का हुआ? तो अमेरिका का। ठीक। दूसरा केस, ये आवश्यक नहीं है, ये आवश्यक नहीं है
कि एक रेसिडेंट हमेशा सिटीजन हो। जैसे कि जॉन नाम के एक व्यक्ति का जन्म हुआ अमेरिका में। जॉन नाम के एक व्यक्ति का जन्म हुआ अमेरिका में। वो व्यक्ति जॉन सिटीजन कहाँ का माना जाएगा? अमेरिका का माना जाएगा। जॉन नाम के एक व्यक्ति का जन्म हुआ अमेरिका में, तो जॉन सिटीजन माना जाएगा अमेरिका का। जॉन बाद में भारत आकर रहने लगा। अब जॉन भारत में रहता है, यही अपनी तमाम आर्थिक गतिविधियां किया करता है, कमाता है, खर्च करता है, पैसा एकत्रित भी भारत में ही वो किया कर रहा है। तो जॉन रेसिडेंट कहाँ का माना जाएगा? तो जॉन रेसिडेंट माना जाएगा इंडिया का, भारत। यहाँ पर आपने देखा कि एक व्यक्ति हमारे देश का रेसिडेंट तो है, जॉन हमारे देश का रेसिडेंट तो है, लेकिन सिटीजन नहीं। 2 पॉइंट हो। एंड लास्टली ये भी जान लें कि ये भी जरूरी नहीं कि एक सिटीजन रेसिडेंट ना हो, एक रेसिडेंट सिटीजन ना हो। एक व्यक्ति विशेष दोनों ही हो सकता है, सिटीजन भी हो सकता है, रेसिडेंट भी हो सकता है। मैं अगर अपनी बात करूं तो मेरा जन्म भारत में हुआ है, तो जन्म के लिहाज से मैं भारत का नागरिक हुआ, सिटीजन हूं। अब मैं भारत में ही रहता हूं और यही अपनी तमाम आर्थिक गतिविधियां भी किया करता हूं, कमाता हूं, खर्च करता हूं और पैसा एकत्रित भी यही भारत में ही किया करता हूं। तो उस लिहाज से मैं भारत का क्या हो गया? रेसिडेंट हो गया। तो एक ही व्यक्ति विशेष भारत का सिटीजन भी है और रेसिडेंट भी है। यहां पर मैं 2 बातें आपको समझाना चाह रहा था। ये जरूरी नहीं है कि हमेशा एक सिटीजन रेसिडेंट हो, ये जरूरी नहीं है कि हमेशा एक रेसिडेंट सिटीजन हो। एंड सेकंड पॉइंट, ये भी जरूरी नहीं है कि एक सिटीजन रेसिडेंट ना हो और एक रेसिडेंट सिटीजन ना हो सकता है कि एक ही व्यक्ति विशेष एक देश का सिटीजन भी हो और रेसिडेंट भी हो, जैसा कि मेरे केस में हुआ। नेक्स्ट आपका टर्म होगा फैक्टर इनकम और ट्रांसफर इनकम। फैक्टर इनकम और ट्रांसफर इनकम क्या होता है? ट्रांसफर इनकम और क्या होता है फैक्टर इनकम? तो फैक्टर इनकम ऑलरेडी आप पढ़े हो 11th में। फैक्टर इनकम, the income which is earned by different factors of production such as land, labor, capital and enterprise by making contribution in the process of production is termed as factor income. The income which is earned by factors of production by contributing in the process of production in the form of rent, wages, interest and profit is termed as factor income. The examples of factor income are rent, wages, interest and profit. Factor income is always an earning concept. Factor income is always an earning concept. Factor income होता क्या है? वो इनकम जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्राइज को प्राप्त होता है, उत्पादन की प्रक्रिया में योगदान देते हुए रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट और प्रॉफिट के रूप में, उसी को हम कहते हैं फैक्टर इनकम। वो इनकम जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को प्राप्त होता है, लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्राइज को प्राप्त होता है, प्रोडक्शन प्रोसेस में योगदान देते हुए, उस इनकम को ही हम कहते हैं फैक्टर इनकम। इन ब्रीफ आप कह सकते हो फैक्टर इनकम उत्पादन में देकर योगदान अगर मिल रहा है दाम, तो उसे हम कहते हैं फैक्टर इनकम। उत्पादन में देकर योगदान अगर मिल रहा है दाम,
तो उसे हम कहते हैं फैक्टर इनकम। लैंड प्रोडक्शन प्रोसेस में कंट्रीब्यूट करता है, बदले में उसे क्या प्राप्त होता है, तो रेंट। लेबर प्रोडक्शन प्रोसेस में कंट्रीब्यूट करता है, बदले में उसे क्या प्राप्त होता है, तो वेजेस और सैलरी। कैपिटल का प्रोडक्शन प्रोसेस में योगदान होता है, उस पर उसे क्या प्राप्त होता है, तो इंटरेस्ट। और एंटरप्राइज को उसके योगदान के बदले में प्राप्त होता है प्रॉफिट। तो ये रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट और प्रॉफिट, ये सब कुछ उदाहरण है फैक्टर इनकम के। मैंने कहा फैक्टर इनकम अर्निंग कंसेप्ट है। फैक्टर इनकम कमाया जाता है, आप उत्पादन में योगदान देते हो, उसके बाद उत्पादन में योगदान देने के एवज में आपको जो इनकम प्राप्त होता है, उसी इनकम को कहा जाता है फैक्टर इनकम। और डिटेल में हम जानेंगे फैक्टर इनकम, ट्रांसफर इनकम, फाइनल गुड्स एंड इंटरमीडिएट गुड्स इन आवर नेक्स्ट क्लास। अभी अगर आपको कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं। एनी डाउट? No, sir. No, sir. तो आप नेक्स्ट क्लास के लिए ये टर्म एक बार खुद से स्टडी करें। फैक्टर इनकम, ट्रांसफर इनकम, फाइनल गुड्स एंड इंटरमीडिएट गुड्स, ये आप पढ़ें और अगले क्लास में इस पर हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। अभी के लिए इतना है। Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, sir. वेलकम।